hello students, again I am in front of you to discuss about the system of linear equation by matrix. So here we will check that whether the given condition is consistent or inconsistent, as well as we will check that how to find out the solution of this by a single question. So it means we can say that कि एक तीर से दो निशाने actually हम करेंगे. And students, today's class is very important to you because I am going to discuss a question that has come in the previous examination for 6 marks question. So this is belonging to 6 marks question. 6 marks question में केवल इतना सा आया था, ये इक्वेशन आपको गिवन थी और आपको निकालना था इसके सोल्यूशन. कहने का मतलब you need to find out the value of x, y as well as z. इतना सा आपको काम करना था. लेकिन यहाँ पर मैं एक साथ दो काम कर रहा हूँ. पहली बात तो मैं ये चेक कर रहा हूँ कि whether the given system has a consistency or inconsistency, as well as we will tell you that how to solve this condition. इसको बताने से पहले मैं एक चीज फिर से आपको रिवाइज करना चाहता हूं कि मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर कोई सिस्टम ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में गिवन है, कहने का मतलब a मल्टीपल x इज इक्वल टू b के फॉर्म में गिवन है, जहां पर a भी एक मैट्रिक्स होती थी, x भी एक मैट्रिक्स होती थी, b भी एक मैट्रिक्स होती थी. A मैट्रिक्स किसके लिए होती थी, याद करो, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स के लिए होती थी. X मैट्रिक्स इज कंसिस्टिंग द वेरिएबल्स ओनली एंड B मैट्रिक्स इज कंसिस्टिंग द कांस्टेंट टर्म. So if this type of situation is occurring here, so what we are doing, we have to find out the value of x. So wherever we need to find out the value of x, तो x is equal to क्या होता था, a inverse b होता था. कैसे आता था, a inverse से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते थे तो ये तो आइडेंटिटी बन जाती थी और यहाँ पे a inverse b आ जाता था. Now the main concept is that to find out the value of a inverse and b. Even you are very smart to understand it, how to understand this. Even though I want to tell you that we must learn that the concept of A inverse is that 1 upon det of A, 1 into adjoint of A or into B. यानी हमें इतने फोकस करना है, यानी कि हमें क्या क्या चाहिए, हमें पहली बात तो det of A चाहिए और det of A के बाद हमें adjoint of A चाहिए. If I have these two things, only then we are able to find out the value of A inverse. After putting the value of A inverse in this given condition, we will be able to find out the solution of the given condition. तो आओ देखते हैं इसको कैसे करते हैं. लेकिन सबसे पहला मुद्दा आता है, जैसे मैंने उस दिन भी आपको बताया था in the previous lecture, कि वहां पर हमने क्या करना होता है. डोंट फॉरगेट दैट थिंग कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या करना होता है कि सबसे पहले डेट ऑफ ए की वैल्यू निकालनी होती है. डेट ऑफ ए हमारी काफी चीजों को, जो धुंधली धुंधली चीजें हैं, उनको बिल्कुल क्लियरिफाई कर देगा. तो आओ देखते हैं ये कैसे क्लियरिफाई करेगा. तो हमने यहां पर सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं. सोल्यूशन है ना. सबसे पहला काम है कि गिवन कंडीशन or you may say given system of linear equation will be in the form of ax is equal to b. जैसा कि मैंने पहले बताया, where a is equal to a matrix, comma x is equal to another matrix and b is equal to another matrix. तो b will be what, एक दूसरी प्यारी सी मैट्रिक्स. और चलो बात करते हैं कैसे निकलते हैं. तो भाई जब भी ऐसा काम करना है तो आपने क्या करना है, a is equal to, ध्यान रखना कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी चेक करने के लिए अभी मैं बता रहा हूं. वेरी फर्स्ट आई एम टेलिंग दैट हाउ टू चेक द कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी. आफ्टर चेकिंग द कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी आई विल टेल यू दैट हाउ टू सॉल्व द गिवन इक्वेशन. सो a will be 4 1 6 3 2 2 and 2 3 3. Now you will ask from where it has come. So I had already told you to A is a matrix which is consisting of the coefficient of x, y as well as z in different conditions. That has been mentioned here. After that, here is the terms to find out x. X is what? X, y, z, and after that this is 60, 45, 70. What you have to do, you must
go through all the series which is being uploaded by me for this matrix or determinants concept. You must see all the things. Even though if you are facing any problem, you may write down in the comment box. I will say that which type of problem you are facing, so that type of video will be again uploaded for you. Don't worry, I'm with you. Now what we have to do for checking consistency and inconsistency, that has been discussed in the previous lecture also. What we will do, we will find out the value of det of a. क्या निकालेंगे हम लोग? det of a की वैल्यू निकालेंगे. तो det of a का मतलब क्या हो गया? 4 3 2 1 2 3 6 2 3. उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? एक्सपेंडिंग along with first row, expanding along with row 1. तो ये क्या होगा? अगर आप इस 4 को लिखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, अंदर एक छोटू मैट्रिक्स बनती थी, ये ओमिट तो इतना बनता था, तो इतना माइनस इतना होगा. तो 2 3 6 minus 3 2 6. I think you are getting. This will carry +1, this will carry minus. So this is -3. Again this will be omitted, this will be omitted, so this is what? 1 6 3 3. So 1 3s are 3 minus 18. So this is what? 3 minus 18. Then again plus sign will carry by this 2. So this is 2, and again a chotu matrix will arise at, it will be removed. Now it is what? 1 2 6 2. That is 1 2s are 2 minus 12. So this is what? 2 minus 12. If you will further solve that is 6 minus 6 0. It is omitted. Now this is 6 minus 18. That is minus ka 15. This is minus 15 and this is minus 3. So minus minus plus will be here. 15 3s are 45. Now you may see here 2 minus 12 is minus 10. Minus 10 into 2. Minus 10 into 2 is minus 20. Now you got 25. This 25 इसका मतलब क्या हो गया कि which is not is equal to 0. 25 0 के इक्वल तो नहीं है, तो आप यहां पर लिखेंगे as det of a is not is equal to 0. Det of a is not is equal to 0. कभी कभी ये भी कहता है कि चेक द यूनिकनेस ऑफ द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन. तो यूनिकनेस का मतलब ये होता है कि आपको चेक करना है कि इसके यूनिक सोल्यूशन है, तो वो भी det of a से आता है. as soon as det of a is equal to 0, you can say that so system has unique solution. System has what? Unique solution. यूनिक सोल्यूशन का मतलब पता ही होगा, नहीं पता हो तो बता देता हूं. यूनिक सोल्यूशन का मतलब x, y and z all are carrying a single value, only one value they are carrying. So system has unique solution and it is consistent. It is consistent. ठीक बात. लेकिन ध्यान रखना, बात यहां पे खत्म नहीं होती. जरूरी नहीं है कि det of a 0 के इक्वल आ जाए. इन द प्रीवियस लेक्चर इट हैज बीन डिस्कस्ड बाय मी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि इफ det of a is not is equal to 0 तो ठीक है, यूनिक सोल्यूशन आ गया. लेकिन सर अगर det of a 0 के इक्वल आ गया तो क्या करेंगे? तो मैंने बताया था अगर det of a आपका 0 के इक्वल आ जाए तो दूसरा काम आपको क्या करना है? एडजॉइंट ऑफ a इंटू b निकालना है. अब एडजॉइंट ऑफ a इंटू b, एडजॉइंट ऑफ a इंटू b निकाला. अगर वो 0 के इक्वल आ जाए तो 0/0 हो जाएगा, तो मैनी सोल्यूशन. लेकिन अगर det of a 0 के इक्वल नहीं आया, इसका मतलब ऊपर कोई वैल्यू होगी, नीचे 0 हो गया तो इनडिटरमिनेट वैल्यू देगा. इट मीन सिस्टम डोंट हैव एनी सोल्यूशन, तो वो इनकंसिस्टेंट होगा. यानी इनकंसिस्टेंट की केवल और केवल एक ही कंडीशन है. वो क्या कंडीशन है कि det of, पहले तो आपको ये निकालना है det of a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और उसके बाद इनकंसिस्टेंट के लिए det of adjoint of a मल्टीपल b, यानी प्रोडक्ट ऑफ एडजॉइंट a एंड b should not be equal to 0. क्या होना चाहिए? वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. अगर 0 के इक्वल आ गया तो फिर कंसिस्टेंट हो जाएगा. ध्यान रखना इस चीज को, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो वी हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट इज हाउ टू फाइंड आउट कंसिस्टेंसी और हाउ टू चेक इनकंसिस्टेंसी. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू.
तो दिस हैज बीन अंडरस्टूड बाय अस। लेकिन आप ऑब्वियस बात है, हमने इतना तो सीख लिया कि ये क्या है, कंसिस्टेंट हो गया। आफ्टर फाइंडिंग द कंसिस्टेंसी हमें ये भी तो करना है ना, क्या करना है, हमें ऑब्वियस सी बात है इसका सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास एडजॉइंट ए इनवर्स होना जरूरी है, ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ ए होना जरूरी है। और एडजॉइंट ऑफ ए के लिए जैसा कि मैंने पहले ही बताया हुआ था कि वी मस्ट हैव द कोफैक्टर्स, बिना कोफैक्टर्स के हमारा काम नहीं बनने वाला है। और कोफैक्टर्स किसी एक एलिमेंट के नहीं, सारे एलिमेंट के निकाले जाएंगे। इसके यानी हमें क्या क्या निकालना है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये सारी चीजें हमें निकालनी है। फिर उससे क्या होगा सर, जब हमारे कोफैक्टर्स आ जाएंगे उसके कलेक्शन से एक मैट्रिक्स निकलेगी, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे और जो उसका ट्रांसपोज होगा दैट इज नोन एज एडजॉइंट ऑफ ए। डेट ऑफ ए ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है, बस फिर अपना काम बन गया। यानी मेन मुद्दा क्या आता है कि वी नीड टू फाइंड आउट द कोफैक्टर्स। चलो कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो कोफैक्टर्स ऑफ ए के कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो पहला कोफैक्टर हमारा होता है A11। क्या होता है A11, जैसा कि मैंने पहले ही बताया हुआ था कि जब हम A11 की बात करेंगे तो 112 होता है, ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव रिजल्ट देगा। लेकिन थोड़ा सा जरा अटेंशन पे करना है यहाँ पे, जब हम A11 की बात कर रहे हैं तो हम इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने जा रहे हैं। इसका पहले माइनस फिर उसका नेगेटिव होता है, अगर इवन है तो पॉजिटिव, ऑड है तो नेगेटिव। तो इसके लिए करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, यानी केवल इतना सा आएगा। हालांकि किस्मत की बात है कि इसके बारे में हम ऑलरेडी अंदर बातें कर चुके हैं, तो आप डायरेक्टली यही लिख सकते हैं जो यहाँ पे है। तो ऑब्वियस सी बात है 6 माइनस 6 दैट इज 0 हो जाएगा। तो A11 आ चुका है। फिर इसी तरह से A12 भी हम फटाक से निकाल सकते हैं। तो A12 ऑलरेडी यहाँ पे निकला है तो हमने इसको लिख लिया। लेकिन ध्यान रखना चूंकि 1 और 2 3 होता है तो नेगेटिव वो ऑड आ रहा है तो साइन नेगेटिव हो जाएगा। दिस इज 3 माइनस 18। मैं फिर से रिपीट कर दूं, घबराना नहीं है, ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट किया हुआ है। A11 कैसे आता है, जब भी हम A11 की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है कि ये गायब हो गया तो एक छोटू सी मैट्रिक्स का रिजल्ट यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, दैट इज 2 2 3 3। तो 2 3 या 6 माइनस 6। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो प्रीवियस वीडियोस हमारे अपलोडेड हैं, यू मे से दैट वीडियोस एंड ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लेरिफाइड बाय यू, दिस इज माय गारंटी। तो आप पूरी चीजें प्लीज ध्यान से देखें, ठीक है। तो जल्दी से A12 निकाल लिया। इसी तरह से हम फटाक से A13 निकालते हैं। तो A13 अगर हम निकालेंगे तो ऑब्वियस बात है यही आने वाला है। तो 2 माइनस 12 दैट विल बी माइनस का 10। तो कितना आने वाला है, माइनस का 10 आ चुका है हमारा। अच्छा ध्यान रखना, क्योंकि 1 और 3 कितना होता है, 4 होता है, फिर इवन है तो पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है। तो सर आपने नेगेटिव रिजल्ट क्यों दिया, बेटा नेगेटिव नहीं है, इसका रिजल्ट है। अब अगर उस पे ये इसका सम ऑड आ रहा होता तो एक ब्रैकेट लगा के बाहर एक माइनस लगा देते तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू +1। तो A11 आ गया, A12 आ गया, A13 आ गया। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। A21 निकालें, चलो नीचे ही निकाल लेते हैं। तो A21 निकाल लिया हमने। तो जब हम A21 का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये गायब होने वाला है और ये गायब होने वाला है। तो क्या मिलेगा, ये और ये। तो 3 3 जा 9 माइनस 4। तो हमारे पास क्या मिल गया, 9 माइनस 4 दैट इज 5। शायद इसी तरह से आपको अच्छा ध्यान रखना कि 2 और 3 आ चुका है तो ये नेगेटिव देगा रिजल्ट, तो ऑब्वियस बात है ये भी नेगेटिव हो जाएगा। फिर आपके पास आ जाता है A22। जब A22 होगा तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, जो भी होगा वो ब्रैकेट के अंदर हम करने जा रहे हैं। तो अब जरा बताओ A22 के लिए किसको सिलेक्ट करें, जस्ट थिंक। ओके वेरी गुड। तो इसमें क्या करना है, इसका मतलब ध्यान से देखो क्या करना है। जब A22 की बात करेंगे तो ये है, तो इसका मतलब ये गायब हो जाने वाला है, ये गायब हो जाने वाला है, यानी दिस और दिस। तो 4 3 जा 12 माइनस 12। तो 12 माइनस 12 दैट इज 0। फिर उसके बाद बात आती है A23 की। 5 हो रहा है, इसका मतलब नेगेटिव आएगा ही आएगा। तो इसका सम कैसा है, 5 आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है। चलो उसको देखते हैं, इसका मतलब ये रुकेगा आपका। तो ये गया तो बचा हमारा 4 6 3 2। तो 4 2 जा 8 माइनस 18। तो दिस इज व्हाट 8 माइनस 18। नाउ यू गॉट दिस माइनस का 10। नाउ यू मे ऑब्जर्व हियर कि वी गॉट फर्स्ट रो एज वेल एज वी गॉट सेकेंड रो। नाउ वी आर चेजिंग टुवर्ड्स द थर्ड रो आल्सो। सो दैट विल बी A31। तो ऑब्वियस बात है 3 1 4 पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ब्रैकेट लगाया, ये खत्म क्योंकि हम इसके लिए कर रहे हैं। तो 3 3 9 माइनस 4 दैट इज 5। फिर इसके बाद हमने निकाला क्या, A32। जब हम ये 32 निकालेंगे, देखो कितना आसान है।
जैसे ही हम A32 निकालने जा रहे हैं तो इसका मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो 4 1 2 3, तो 4 3 12 minus 2, 12 minus 2 इट मींस 10 इज हियर। ध्यान रखना 3 to 5 होता है, नेगेटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां भी हमें नेगेटिव रिजल्ट ही मिलने वाला है। उसके बाद लास्ट हमारा बचता है आपका A33, 336 होता है, पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ऑब्वियस सी बात है, कॉर्नर है, ये खत्म, 4 2 8 minus 3, तो 8 minus 3 you got 5 finally, तो you have got such type of things। आपके लिए ये जो मैंने यहाँ पर किया हुआ है 6 minus 6 3 minus 18, you must to know that how it has come here, so you should know कि whenever you are going to find out A11 that will be a dead sign, यानी डिटर्मिनेंट का साइन आएगा, उसके बाद क्या होगा, ये रिमूव हो जाएगा और ये रिमूव हो जाएगा, तो आप डेट के अंदर एक छोटे से डेट के अंदर यहाँ पर पहले लिखेंगे आप इस चीज को, भूलना नहीं, क्या लिखोगे 2 2 3 3, 2 2 3 3, तो अब ये 2 3 6 minus 6, तब ये 0 आया हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेना आगे, तो ये माइनस का 15 और -1, तो ये प्लस का 15 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये माइनस, तो यहाँ माइनस का 18, तो ये प्लस का 18 आ जाएगा। तो इसी तरह से आपको सारे करने, जैसे मैं लास्ट वाला आपको बताऊं A33, तो A33 का मतलब क्या होगा, ये ओमिट हो जाएगा, ये ओमिट हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका 4 1 3 2, यानी एक पहले छोटी सी मैट्रिक्स यहाँ पर आएगी, ऐसे क्या आएगी, क्या ओमिट हो गया था, ये गायब हो गया था, ये गायब हो गया, तो 4 1 3 2, तो 4 1 3 2, तो अब क्या होगा 4 2 8 minus 3, तो 8 minus 3, तब ये तुम्हारा 5 आएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। तो आफ्टर राइटिंग दीज ऑल थिंग, द सेकेंड वर्क इज दैट टू फाइंड आउट द एडजॉइंट ऑफ दैट। तो आप यहां पर इसके बाद हम लोग कर ले रहे हैं, तो यू विल राइट डाउन हियर, गंदा हो गया था यार, तो इसके क्या लिखेंगे आप यहां पर, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स which will be obtained by these all cofactors. So what you are getting here, 0 15 minus 10, 0 15 minus 10, minus 5 0 10, minus 5 0 10, and finally 5 minus 10 5. So this is what 5 minus 10 5। एडजॉइंट ऑफ ए अभी नहीं आया, अभी इसका ट्रांसपोज है। एक बार फिर से आप इक्वल का साइन लगाएंगे, थोड़ा सा छोटा साइज कर दे रहा हूं ताकि जल्दी से हो जाए, टाइम ना लगे। दीज ऑल रो विल बी टर्न्स टू कॉलम एंड कॉलम विल बी टर्न्स टू रो टू फाइंड आउट द एडजॉइंट ऑफ दैट। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, 0 15 minus 15, 0 15 and this is minus 10, then minus 5 0 10, minus 5 0 10, 5 minus 10 5, so this is what 5 minus 10 and 5. You may observe here this is minus 5 minus 10 and 5. I hope that clearly seems here. So adjoint of A has been comes out, as well as that of A is already here. So now it is quite easy to find out that. What we have to do now, we are supposed to find out this x is equal to. So you will write down here, थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं, शायद इतने में हो जाए तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो आप यहाँ पर क्या लिखने वाले हो, x इज इक्वल टू, और दिस इज ए इनवर्स का मतलब होता है, आपको पहले ही बता चुके हैं क्या होता है, 1 अपॉन det ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी। आगे इसको फिर से करते हैं एक बार, तो 1 अपॉन det ऑफ a was 25, so 1 upon 25 is here, a small matrix symbol is here। now the adjoint of a, ये है adjoint of a, so the adjoint of a is what, you will write down here 0 minus 5 5, then 15 0 minus 10, then minus 10, and this is 0 not 6, then this is also 10, and after that it is 5. So this is what, this whole is A inverse into what is B, that must be written here, yes of course। So the value of B has been mentioned in above direction, that is 60 45 and 70। so you will write down here 60 45
17। अब देखो बच्चा, एक काम तो ये है कि इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई सॉल्व कर लो। या तो मेरे जैसे थोड़े से स्मार्ट हो जाओ, मेरे जैसे थोड़े से स्मार्ट हो जाओगे, चीजें बहुत ज्यादा आसान होने वाली है। सर कैसे, ये कैसे बता रहे हैं? तो हम ये कह रहे हैं कि दिस 1/25 कैन बी रिटन एज 1/5 मल्टीपल 1/5। तो एक 1/5 का अंदर सब में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, और एक 1/5 का इधर सब में मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ऑल आर डिविजिबल बाय 5। तो ये जो फ्रैक्शन है इसका काम खत्म हो जाएगा एंड चीजें विल बी क्वाइट स्मॉल। आपको नहीं लगता है? वेरी गुड, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इस 1/25 को, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि 2 × 3 × 5 × 7, तो 2 का मल्टीप्लाई लास्ट वाले से कर दो, बीच वालों का मल्टीप्लाई अलग कर दो। तो ये अपने हाथ पे है, ठीक है। तभी हमें बचपन में पढ़ाया जाता था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, हम लोग नहीं पढ़ते थे, चलो आज पढ़ लेते हैं। तो दिस 1/25 विल बी स्प्लिटेड एज 1/5 और 1/5। तो ये 1/5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और एक 1/5 का अदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसा हम करने जा रहे हैं, आप लोग नहीं रोक पाएंगे। तो 1/5 का 0 से, तो ये 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। थोड़ा सा इजी प्रोसेस है, प्लीज फॉलो कर लोगे तो बहुत ट्रिकी है। फिर इसी तरह इसमें करेंगे, तो ये 3 हो जाएगा, दिस विल बी 0 एंड दिस इज व्हाट -2, देन दिस इज -2, दिस इज -2। अच्छा, तुम सोच रहे हो कि मैं रुक कैसे गया, तो वही मैं देख रहा हूं कि -5 0 10, तो -5 0 10, हाँ बिल्कुल सही है। 2 - 10 आर हियर, 2 - 10 आर हियर ऑल्सो, ठीक है, चीजें आसान है, इसका मतलब सही हो गई। अब उसके बाद 1/5 का इसके साथ कर रहे हैं, तो माइनस का 2, देन प्लस का 2 एंड फाइनली यू गॉट 1। तो ये छोटी सी एक मैट्रिक्स आ गई है भाई। उसके बाद दूसरी मैट्रिक्स आप निकालने वाले हो, तो दूसरी मैट्रिक्स आप जब 1/5 का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो दिस विल बी 12, इट विल बी -2, नहीं सॉरी बच्चा, बहुत बड़ी गलती हो गई, हमसे माफ कर दो, और 9, और जब 1/5 का इसके साथ करोगे तो यू विल गेट 14। इस तरह से आपने देखा कि ये दो मैट्रिक्स आ गई। नाउ यू आर एबल टू मल्टीप्लाई दिस एंड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये जो पूरी मैट्रिक्स आएगी वो किसके इक्वल होगी? x के इक्वल होगी। और x को हम लोग क्या बोल रहे थे? x, y और z। चलो यहां पर कर लेते हैं, दैट गिव्स x, y, z इज इक्वल टू, थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, तो 0 12 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, -1 और 9 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 9 आ जाएगा, और 1 और 14 14 हो जाएगा, तो माइनस का 9 और प्लस का 14, तो आपका आने वाला है 5। आई होप समझ में आ गया होगा। क्या करते हैं, उल्टा एल होता है, इस पूरे का मल्टीप्लाई इससे किया जाता है ना। तो ये तो 0 देने वाला है, ये माइनस का 9 देने वाला है, ये प्लस का 14 देने वाला है, 5 आ जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, 12 3 जा 36, ये 0 मिल जाएगा, और ये माइनस का 28, तो 36 - 28 अगर आप करेंगे तो शायद आपको 8 मिलेगा, तो ये आपका मिल गया 8। उसी तरह से माइनस का 24 और ये प्लस का 18, पहले इसको सॉल्व कर लो। माइनस का 24 प्लस का 18 और प्लस का 14, तो प्लस का 18 और प्लस का 14, इसको आप प्लस कर लेना। क्या हम आपने थोड़ा सा कर लें, चलो इसको। तो क्या किया हमने, माइनस का 24 और 2 9 जा 18, प्लस का 18 और 1 4 14 जा 14, तो प्लस का 14 इज हियर। तो फाइनली यू गॉट -20, इसको हमने माइनस का 24 और ये प्लस का हो गया 8 4 12 2 कैरी 1 3 32, तो यू आर गेटिंग 8 आई थिंक। ये सपोज यू आर गेटिंग 8। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि x = 5, y = 8 और z = 8। This is your answer. I hope that you have understood it completely. If I had explained properly, you are able to understand. Please like this video, share this video as well as subscribe also. Pressure नहीं है रे बाबा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि as soon as you will do so, I will get motivated and I will make more and more videos to you so that it will be beneficial to you also. Thank you. Final board का solution है x = 5, y = 8 और z = 8। इस तरह से आपका ये सोल्यूशन आ चुका है। ध्यान रखना बोर्ड में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया है, तो इसको हल्के में मत लेना, और प्लीज़ इस टाइप के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व जरूर कर लेना, सो इट विल मेक यू परफेक्ट टू गेट द परफेक्शनलाइजेशन ऑन दिस सम। थैंक यू।